Hello class 9th. So our new topic for today is input and output devices. So what do you understand by input devices? Now you people know that giving any type of data into the computer is known as input. So input means giving data to the computer, while whenever we are receiving anything from the computer is known as output given by the computer. For example, whatever screens that you see, मतलब आप कंप्यूटर पे आप जो कुछ भी देखते हो, everything is the output. So output is whatever we get from the computer. Now one thing in this is, what are the different types of input devices and what are the different types of the output devices. So today we will be studying about those types of devices only. So we have different types of input devices. The first input device is the keyboard, then we have the mouse, then we have the mic or the microphone or the scanner and the webcam. The keyboard, as we all know, that it is a type of a device in which we have different alphabets, just like the typewriter. Whenever we press any key, then whatever letter we have on that particular key, that letter is entered into the computer. Then we have the mouse. Mouse is also acting as a input devices. हम mouse के through computer में क्या देते हैं, instructions. For example, अगर हम किसी भी चीज़ पे single click करते हैं, that means वो उस चीज़ को select कर लेता है. और किसी चीज़ पे अगर हम double click करते हैं तो that means वो उस चीज़ को open कर देता है. आपको कभी भी किसी फाइल को ओपन करना होता है, आप हमेशा उस पर डबल क्लिक करते हैं. किसी भी फाइल को सिर्फ सिलेक्ट करना होता है, यू ऑलवेज डू दी सिंगल क्लिक. देन वी हैव द माइक. राइट नाउ माई मोबाइल फोन इज रिकॉर्डिंग माई ऑडियो. दिस इज थ्रू वॉट? दिस इज थ्रू द माइक्रोफोन और द माइक. ओके, लाइक in our assembly also, whosoever is just giving the instructions on the stage, that person is speaking on the mic. So mic is taking that voice and then through the loudspeaker you can get to hear the voice. So mic is also acting as a input device. Then we have the scanner. So scanner, as you people know, that scanner is a device that reads whatever it is given in front. For example, I have sent you a PDF of this chapter. So that PDF, it was actually in a hard copy. वो बुक की थी, लेकिन मैंने उसको स्कैन किया with the help of a scanner. और फिर अब वो जो फाइल है वो अब किस तरीके की फाइल बन चुकी है? एक सॉफ्टवेयर फाइल बन चुकी है. दैट मीन्स इट इज़ नाउ अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर डेटा. लास्ट वी हैव द वेबकैम. So right now this video is recorded through what? This video is recorded through webcam. Whenever you are talking to somebody, whenever you are talking to your friends, you are talking through the webcam. अगर कभी भी आप वीडियो कॉलिंग करते हो किसी भी रिलेटिव से, किसी भी फ्रेंड से, वी आर टॉकिंग थ्रू द webcam. Now if I talk about the scanners, then we have different types of scanners. So scanner is also of 3 types. Okay, the first type of the scanner is the handheld scanner. First type of scanner is the handheld scanner. So whenever you go to the shopping malls, आप कभी भी बिलिंग करवाने जाओ तो जो वहाँ पर जो बिलिंग डेस्क पे जो भी पर्सन होते हैं, ही इज़ हैविंग अ स्मॉल डिवाइस इन हिज हैंड्स. और वो उस डिवाइस से क्या करते हैं, एक टैग लगा होता है, किसी भी जो भी आप सामान खरीदते हो उस चीज़ के ऊपर उस टैग को वो स्कैन करते हैं. सो दैट इज़ व्हाट टाइप ऑफ स्कैनर? इट इज़ अ हैंडहेल्ड स्कैनर बिकॉज इट इज़ सो स्मॉल दैट यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड. सेकेंड टाइप ऑफ स्कैनर इज़ द फ्लैट बेड स्कैनर. जिस तरीके से आपने कभी देखा होगा, किसी भी आप फोटो स्टेट की शॉप पे गए होगे, सो वहाँ पे एक बड़ी सी फोटो स्टेट की मशीन रखी होती है. फ्लैट बेड स्कैनर इज ऑल्सो ऑफ दैट टाइप. वो बड़ा सा एक डिवाइस होता है. उसमें क्या करते हैं, वे कीपती जैसे हम फोटो स्टेट करते हैं, सिमिलरली हम वैसे ही उस पर जो भी हमारा डॉक्यूमेंट होता है जिसको हमें स्कैन करना होता है, वो डॉक्यूमेंट रखते हैं और फिर वो डॉक्यूमेंट स्कैनर के थ्रू कंप्यूटर में एंटर हो जाता है. दैट मीन्स आप जो भी स्कैन करोगे उसकी जो फोटोग्राफ है वो कहाँ पर आ जाएगी? कंप्यूटर में. Then the third type of the scanner is the drum scanner.
ड्रम स्कैनर हम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें क्या होता है, एक बड़ा सा ड्रम होता है, हम जो भी अपना फाइल रखते हैं वो यहाँ पे रखते हैं। ये ड्रम जो होता है इस फाइल के ऊपर मूव करता है, और मूव करते करते जैसे जैसे ये आगे मूव करते रहता है उस फाइल के ऊपर, वैसे वैसे उस फाइल का डेटा को ये ड्रम रीड करता रहता है। ओके, so that is why this type of scanner is known as the drum. Now we will talk about in this video about the output devices. So whenever we talk about output devices, we talk about those devices जो हमको क्या देते हैं, आउटपुट। सो आउटपुट हमें अलग अलग तरीके से मिल सकता है, चाहे वो हमें पिक्चर्स के फॉर्म में हो, या फिर वो हमें ऑडियो के फॉर्म में मिल सकता है, या फिर वो हमें टेक्स्ट के फॉर्म में मिल सकता है। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, वट एवर। ओके, सो अभी हम फर्स्ट जो डिवाइस है जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज द मॉनिटर। ओके, मॉनिटर मीन्स द स्क्रीन। तो मॉनिटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। आपने देखा ही होगा मॉनिटर किसको बोलते हैं, द स्क्रीन जो हमारे कंप्यूटर पे होती है, जिस पे हम सब कुछ देख सकते हैं, सारे ग्राफिक्स, सारे इमेजेस, सारे पिक्चर, सब कुछ देख सकते हैं, दैट इज द मॉनिटर। सो मॉनिटर्स आर डिफरेंट टाइप्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मॉनिटर। द फर्स्ट वन इज द CRT और द कैथोड रे ट्यूब। इसकी फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ट्यूब। सो अगर आपने कभी देखा हो तो पहले के ज़माने में जो मॉनिटर्स या फिर जो टीवीज़ होते थे वो काफ़ी पीछे से काफ़ी बड़े हुआ करते थे, और वो पीछे से उसमें इस तरीके, फॉर एग्जांपल इस तरीके की टीवी हुआ करती थी पहले के ज़माने में। इसमें क्या होता है, ये जो पीछे का जो ये पोर्शन निकला होता है, इट इज़ बिकॉज कि उसमें एक तरीके का ट्यूब फिटेड होता है जिसका शेप कुछ इस तरीके से होता है। इसको हम बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। तो इसमें क्या होता था, ये जो कैथोड रे ट्यूब है इसके थ्रू लाइट आती थी, और वो जो लाइट होती थी वो यहाँ पे स्क्रीन पे टकराती थी, और जब वो लाइट स्क्रीन पे टकराती थी तब जाके स्क्रीन पे इमेज बनती थी। तो पहले के ज़माने में वी हैड सच टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, दोज वर नोन एज द कैथोड रे ट्यूब्स और द CRT मॉनिटर्स। द सेकेंड टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर द LCDs और द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सो LCDs यू पीपल मस्ट बी नोइंग। LCDs तो बहुत कॉमन है, आजकल सभी घर में LCDs होती हैं। LCDs TVs आर देयर, LCD monitors आर देयर, इवन इन आवर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर लैब वी हैव दी LCD monitors। सो LCDs में क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हम इसको बोलते हैं। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये जो मॉनिटर्स होते हैं इसमें हम एक तरीके का सब्सटेंस यूज करते हैं, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स। यानी कि स्क्रीन इज मेड अप ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स दैट आर नीदर लिक्विड नीदर सॉलिड, इसलिए हम उनको लिक्विड क्रिस्टल्स बोलते हैं। और फिर जब पीछे से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू दी जो भी हमें आपको जो भी सीन दिखाना होता है स्क्रीन पे, जो कुछ भी इमेज दिखानी होती है उसके अकॉर्डिंग वो डिफरेंट लाइट एमिट करते हैं, और इसलिए हमारी स्क्रीन पे कलरफुल पिक्चर्स बनती हैं। Then the third type of monitors are the plasma monitors. आपने कई जगह पर सुना होगा दैट सन इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। सन इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का मतलब होता क्या है? प्लाज्मा का मतलब होता है हाईली आयनाइज्ड गैसेस। हाईली आयनाइज्ड गैसेस। आप अगर सिंपल टर्म्स में अगर आप समझें तो गैसेस जो बहुत ज़्यादा ही हाई टेम्परेचर पे होती हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और जो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करती हैं, हम उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं हाईली आयनाइज्ड गैसेस। और जो प्लाज्मा होता है वो उन सारे, अगर एक ही जगह पे कई सारे इस तरीके से गैसेस होती है तो हम उस पूरे सब्सटेंस को बोलते हैं प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा मॉनिटर्स होते हैं उसमें भी सेम हम चीज़ यूज़ करते हैं। वी यूज़ द सेम टेक्नोलॉजी ओवर देयर। इसमें क्या होता है, हम हाईली इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेस को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसेस। तो क्या होता है, जब हम गैस को बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी के साथ चार्ज करते हैं तो जो गैसेस होती हैं दे बिकम हाईली आयनाइज, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है एंड दे स्टार्ट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन द स्क्रीन। तो उसमें हम यही करते हैं, मॉनिटर्स की जो स्क्रीन होती है हम उसमें हाईली आयनाइज्ड गैसेस और द प्लाज्मा वी यूज़ दैट
फिर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है वैसे वैसे ये जो गैसेस होती हैं दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन दी स्क्रीन और उससे वो इमेज बनाते हैं. देन द फोर्थ टाइप्स ऑफ मॉनिटर आर दी टच स्क्रीन्स मॉनिटर. सो आजकल आपने देखा ही होगा कि जो भी हमारे टेलीविजन्स आ रही हैं, द स्मार्ट टेलीविजन्स, वो अब टच स्क्रीन आ रही हैं. सो टच स्क्रीन मॉनिटर्स में यही होता है कि जो भी हमारी स्क्रीन होती है उस स्क्रीन के पीछे कुछ सेंसिटिव एलिमेंट्स होते हैं जो टच को फील कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स में होते हैं, हमारे स्मार्टफोन्स में होते हैं. सेम वही मटेरियल्स हमारे मॉनिटर्स पे भी होते हैं. जहाँ जहाँ हम जैसे जैसे टच करते रहते हैं मॉनिटर को वैसे वैसे पता चलता रहता है कि ओके दिस इज़ द सिग्नल, नाउ यू हैव टू डू दिस, नाउ यू हैव टू डू दैट. देन द फोर्थ टाइप ऑफ monitors are the OLED or the organic light emitting diode. LED stands for light emitting diode. So OLED monitors में क्या होता है, कुछ organic, O stands for organic and LED की फुल फॉर्म होती है light emitting diodes. लाइट इमिटिंग डायोड्स मीन्स वो स्मॉल अगर आपने देखा हो जो हमारे एलईडी बल्ब्स वगैरह होते हैं उसमें जो डायोड्स होते हैं सेम वही डायोड्स यूज़ होते हैं एलईडी में. लेकिन ऑर्गेनिक हमने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ किया है. ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो हम यूज़ करते हैं मॉनिटर्स में, तो जैसे जैसे हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और जैसे जैसे वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है वैसे वैसे हम टीवी पर या फिर हमारा जो भी मॉनिटर स्क्रीन है हम उस पर देख सकते हैं कि हमें कौन कौन सी पिक्चर. नाउ नेक्स्ट वील टॉक अबाउट दी स्पीकर्स. सो स्पीकर्स एवरीबडी नो द स्पीकर इज समथिंग दैट इनेबल्स अस टू हेयर एनी टाइप ऑफ ऑडियो. तो स्पीकर में क्या होता है, जो भी हमारे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के थ्रू आते हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आते हैं, डिजिटल सिग्नल्स को स्पीकर क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करता है ऑडियो सिग्नल में. ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं एंड देन वी कैन hear them. Okay, now after the speaker the next type of devices are the plotters. सो आप लोगों ने प्रिंटर तो सुना होगा लेकिन प्लॉटर में भी आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो. सो आपको पता है कि जो आप लोग होर्डिंग्स वगैरह देखते हो रास्ते में ऑन दी रोड साइड, यू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ होर्डिंग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट एडवर्टीजमेंट. तो उसके लिए हम छोटा सा प्रिंटर तो काम नहीं करेगा ना, उसके लिए हमें बड़े बड़े डिवाइसेस चाहिए जो उसको प्रिंट कर सकें. तो उन डिवाइस को हम बोलते हैं प्लॉटर्स. सो प्लॉटर्स जो होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. द फर्स्ट टाइप आर दी पेन प्लॉटर्स. पेन प्लॉटर्स में क्या होता है, देयर इज अ पेन दैट कीप्स मूविंग अप एंड डाउन थ्रू आउट दी होल स्क्रीन. यानी कि जो भी पूरा फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ा सा फ्लैक्स है जो बिल्कुल ब्लैंक है, तो उसमें जो पेन प्लॉटर होता है तो उसमें जो पेन होता है वो पूरे फ्लैक्स पे अप एंड डाउन मूव करता है एंड बाय मूविंग लाइक दैट वो पूरे फ्लैक्स पे जो कुछ भी प्रिंट होना होता है वो उसको आराम से प्रिंट कर सकता है. ठीक. देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लॉटर वी हैव दी फोटो प्लॉटर. तो अगर आपने 8th में साइंस में पढ़ा होगा फाइबर ऑप्टिक्स एक टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू लाइट जो है वो ट्रैवल कर सकती है या फिर जो भी एनर्जी होती है वो ट्रैवल कर सकती है डिफरेंट फाइबर्स के थ्रू. तो सेम वही टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की है इस तरीके के फोटो प्लॉटर्स में जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं. थ्रू दैट वी आर ट्रैवलिंग, द लाइट इज ट्रैवलिंग, और वो जो लाइट ट्रैवल होती है उसमें जो भी कलर्स होते हैं बिकॉज ऑफ दैट द इमेज कैन बी प्रिंटेड ऑन दी फ्लैग्स. जो भी ब्लैंक फ्लैग्स होता है उस पर इमेज प्रिंट हो जाती है. अभी आपका जो भी सिलेबस है उसमें बस आपके लिए ओवरव्यू ही है. सो दिस मच इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू. देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ द आउटपुट डिवाइस इज द प्रोजेक्टर. So projector everybody must be knowing. Projector means a device that is throwing out light. वो लाइट थ्रो करता है और उस लाइट से क्या होता है, स्क्रीन पे पूरी एक इमेज बनती है. फॉर एग्जाम्पल दिस द स्क्रीन, तो स्क्रीन पे इमेज बन जाती है. इन द मल्टीपर्पज हॉल ऑल्सो एट द स्कूल वी आर हैविंग द प्रोजेक्टर जिसके थ्रू वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोज ऑन द स्क्रीन. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ द आउटपुट डिवाइस आर द प्रिंटर्स. So printers are of two types, impact and non-impact printers. So for this I have sent you another link of the YouTube tutorial. You go through that video and understand about the different types of impact and non-impact
printers. That's all for today. Thank you and have a nice day.